الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر تشریف فرما ارباب علم و دانش، صاحبان فضل و کمال، بالخصوص صاحب سجادہ داماد العالی، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، اس وقت ہمارا تقریب عرس میں حاضر ہے۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کے اب تک آپ حضرات نے شاندار نعت خوانوں اور شاعروں سے نعتیں سنی، قصیدے کے اشعار اور منقبتیں سنی، اور اب رات کے آخری حصے میں تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ عزیزی مکرم مولانا وقار اعظم زادہ اللہ شرفا و فضلا کہ بار بار اصرار پر آج آپ کے اس خطے میں پہلی بار میری حاضری ہو رہی ہے۔ رب کائنات آپ کی اور میری اس پاکیزہ بزم میں شرکت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ یہ وقت آرام کا ہے۔ انسانی طبیعت آرام چاہتی ہے، لیکن آپ حضرات اپنے آرام کو تج کر صاحب عرس کے فیض و برکات لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء اور شعراء کے
اشعار اور بیانات سے اپنے دل و دماغ کو روشن کر رہے ہیں۔ مولا تعالی صاحب عرس کے فیض و برکات سے بھی آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام اجمعین۔ دنیا کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور اتنی نعمتیں اس نے عطا کی کہ خود اس کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ نعمتوں کی بہاریں آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے رہتے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک ارشاد میں فرماتے ہیں، اے انسان، جب تو ایک سانس اندر لے جاتا ہے، یہ سانس کتنی قیمتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ غور کرو، اگر یہ سانس اندر جا کر کے رک جائے اور باہر نہ نکلے تو بتائیے پھر کیا ہوگا؟ ایک سانس اندر گئی، اگر وہ سانس باہر نہ نکلے تو انسان کا جنازہ نکلے گا، اور سانس اگر باہر آ گئی اور پھر یہ اندر نہ جائے، اندر جانے سے انکار کر دے، تو اگر یہ سانس اندر نہیں جائے گی تو آپ بھی گھر کے اندر نہیں جا سکتے۔ ایک سانس اندر گئی تو ایک نئی زندگی ملی، اور ایک سانس باہر آئی تو ایک نئی زندگی ملی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر سانس میں اللہ ایک نئی زندگی عطا کر رہا ہے، اسی لیے آگے فرمایا در ہر نفس سے یک شکر واجب، ہر سانس پر جب وہ ایک نئی زندگی دے رہا ہے تو ہر سانس پر ایک شکر ادا کرنا واجب ہے۔ آج کا دستور کیا ہے؟ رسموں کی بھرمار ہے، لفاظی دنیا ہے۔ میں ایک بار سفر کر رہا تھا، اتفاق سے ڈرائیور کو راستے میں کچھ تردد ہوا کہ یہ راستہ جانا ہے یا اس راستے سے جانا ہے۔ اتفاق سے 10-12 سال کا ایک بچہ سامنے کھڑا ملا۔ ڈرائیور نے اس سے پوچھا ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، اس نے کہا اس راستے پر چلیے۔ گاڑی آگے بڑھنے لگی تو وہ لڑکا کہتا کیا ہے، آپ نے تھینکس نہیں کہا اور چل دی۔ مطلب کیا ہے؟ ایک بچہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو راستہ بتایا تو آپ پر احسان کیا، لہذا اس کا شکر ادا کرو۔ آپ بغیر تھینکس کہے آگے چلے، تھینکس کہنا چاہیے تھا، تھینک یو کہنا چاہیے تھا، یعنی تمہارا شکریہ کہ تم نے راستہ بتایا۔ آپ نے تھینکس کہہ دیا، اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ یہ لفظوں کی دنیا ہے، ہر بات پر تھینکس کہنا ایک
मिजाज बन गया। धक्का मार करके सॉरी कह दीजिए, सारी खताएं माफ। ये दुनिया समझ रही। किसी ने आपके साथ कोई एहसान किया, आप थैंक्स कह दीजिए, ये बात खत्म। जब एक मामूली बच्चा आपको सिर्फ रास्ता बताने की बुनियाद पर चाहता है कि मेरा शुक्रिया अदा किया जाए, तो जिस खालिक और मालिक ने आपको हजारों नेमतों से नवाजा है, क्या उसका शुक्र अदा करना ये इंसान के ऊपर लाजिम नहीं है? दर हर नफ्स से एक शुक्र वाजिब, हर सांस पर एक शुक्र अदा करना वाजिब है, हजरत शेख सादी ने फरमाया। और अगर आप इस तरह से शुक्र अदा करते रहें तो जितनी सांस उतनी मर्तबा सजदे और रुकू में जाना पड़ेगा। मगर उसका करम देखिए, उसकी मेहरबानी देखिए, उसकी रहमत देखिए कि वो आपको हमेशा सजदे में पड़ा रहने का हुक्म नहीं देता, हरदम आपको नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देता। अक्ल ये चाहती है कि जब हरदम वो हमको नेमत दे रहा है तो हरदम हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मगर उसका करम है कि उसने हरदम हमें शुक्र अदा करने के लिए सजदे में पड़े रहने का हुक्म नहीं दिया। हजरत शेख सादी शिराजी ने हमको ये मिजाज दिया कि अगर उसने तुम्हें जिंदगी दी है तो अगर हरदम सजदे में नहीं पड़े रहते हो तो कम से कम जितनी बार उसने हुक्म दिया है उतनी बार तो सजदे में पड़े रहो। जिस तरह से उसने शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है उस तरह से तो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। कुरान करीम में फरमाया गया, लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, मेरी नेमतों का शुक्राना पेश करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हारी नेमतों में और इजाफा करूंगा। और अगर तुमने मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दिया तो फिर समझ लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। आज हम और आप अजाब में गिरफ्तार, खुशफहमी में मुब्तला मत रहिए। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आज का जो दिन गुजरा है, 2 अप्रैल का जो दिन गुजरा है, क्या समझते हैं कि ये दिन आकर के ऐसे ही चला गया? ये आपकी पीठ में खंजर भोंक करके गया। ये दिन आपकी जमीन को तंग करके गया है। ये दिन आपकी दरगाहों की हिफाजत को परख के उड़ा करके गया है। आपने मीडिया के जरिए सुन लिया होगा कि किस तरीके से आपकी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में किए जा रहे हैं। वक्फ की जायदाद आपसे छीनी जा रही है, मुस्कुराहट कैसे आ रही है? आपकी मस्जिदें मिस्मार की जा रही है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपकी दरगाहों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, आपको हंसी कैसे आ रही है? हिंदुस्तान का वो बादशाह जिसने अदल इंसाफ से पूरे हिंदुस्तान को भर दिया था, जिसके अदल इंसाफ की दास्तान बयान करने पर गैर मुस्लिम मुंसिफ मुअर्रिखीन भी मजबूर थे, अंग्रेजों ने भी जिसके अदल इंसाफ की दास्तान को किताबों में लिखा है, आज उसकी कब्र को तोड़ने का मुतालबा किया जा रहा। आप हंस कैसे रहे हैं? आप अजाब में गिरफ्तार हैं। यह और बात है कि आदमी का जब एहसास मर जाता है तो उसके ऊपर चाहे बुलडोजर चलाया जाए या उसके ऊपर मिसाइल गिराई जाए, उसको कुछ एहसास नहीं होता है। इसीलिए शायर ने कहा था, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते खाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। आप ये समझते हैं शानदार इमारत आपने बना लिया तो आप कामयाब हो गए। आप ये समझते हैं कि अगर आप बेहतरीन इंजीनियर बन गए तो आप कामयाब हो गए। आप ये समझते हैं मैंने शानदार डिग्री हासिल कर ली, डॉक्टरी की, तो मैं कामयाब हो गया। आप ये समझते हैं कि अगर कोई बेहतरीन आलिम बन गया तो वो कामयाब हो गया। आप ये तस्वीर करते हैं मेरा बेटा शानदार हाफिज बन गया, ये कामयाब हो गया। आप ये समझते हैं मैं शेख तरीकत बन गया, मैं कामयाब हो गया।
याद रखिएगा, मंजिल अलग है, निशाने मंजिल अलग है, दोनों में फर्क होता है। मिसाल के तौर पर मुझे अभी यहाँ से सफर करके गोरखपुर होते हुए अपने शहर खलीलाबाद पहुंचना है और उसके बाद फिर मुझे कल आगे का सफर करना है। जब मैं यहाँ से सफर शुरू करूंगा, कुछ दूर जाने के बाद एक पत्थर मिलेगा, उस पर लिखा होगा गोरखपुर 200 इतने किलोमीटर। जो ही मैंने देखा कि गोरखपुर लिखा हुआ है, ड्राइवर से मैंने कहा कि गाड़ी रोक दो, गोरखपुर आ गया। कहेगा हजरत गोरखपुर अभी नहीं आया है। मैं अगर कहूं कि देखो गोरखपुर लिखा हुआ है, गाड़ी रोक दो, उसने गाड़ी मेरे कहने पर रोक दी और मैं उतर गया। बताइए मंजिल पर पहुंच जाऊंगा? मंजिल पर मेरी पहुंच हो जाएगी, रसाई हो गई मंजिल तक। आप कहेंगे कि नहीं, ये मंजिल नहीं है, फिर क्या है? वहां तो लिखा हुआ है गोरखपुर। लेकिन आप कहेंगे हजरत इसलिए आप मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे कि ये पत्थर मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। मंजिल कोई और चीज है, ये निशाने मंजिल है, ये निशान है। ये बता रहा है कि अभी आपको इतनी दूरी और सफर करना है। मंजिल और है, निशाने मंजिल और है। ये दरगाह ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये मदरसा ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये डिग्री ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये रोजा ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। नमाज ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये बड़ी बड़ी इमारतें ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। आपने निशाने मंजिल को मंजिल समझ लिया, आपने शानदार मकान बना लिया, तो आप समझते हैं कि मैं मंजिल पर पहुंच गया। आप आलिम बन गए, बेहतरीन मुफ्ती बन गए, शानदार खतीब बन गए, बेहतरीन हाफिज बन गए, उम्दा इंजीनियर बन गए, आला किस्म के डॉक्टर बन गए, तो आप समझते हैं मैंने मंजिल पा लिया। इसीलिए तो भूल भुलैया में पड़ गए। आपने निशाने मंजिल को मंजिल समझ लिया, इसीलिए आप भटक गए। ये सब मंजिल है नहीं है, ये सब निशाने मंजिल है। मंजिल क्या है, मंजिल क्या चीज है? तो याद रखिएगा ये सारी चीजें निशाने मंजिल है। और मंजिल दर हकीकत दरबारे मुस्तफा है। मंजिल दर हकीकत मेरे मुस्तफा की ये ताकत है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था मुस्तफा मेरे साथ फेसला कि दी हमाऊस अगर बहु नरसी दी तमाम बूलह भी खुद को दरबारे मुस्तफा में पहुंचाओ। और अगर तुम वहां नहीं पहुंच सके तो चाहे तुम आसमानों में उड़ते रहो, तुम सब कुछ हो सकते हो, मगर मंजिल तक पहुंचने वाले मसलके आला हज़रत फैज़ान सरकार सुल्तानी शरीफ उर्से अलाई हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब अली। निशाने मंजिल अलग है, मंजिल अलग है। जो निशाने मंजिल में गुम रहता है उसका उर्स नहीं होता, जो मंजिल तक पहुंच जाता है उसका याद मनाई जाती है। जो मंजिल तक पहुंच जाता है उसके तस्करे किए जाते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर मंजिल तक पहुंच गए तो आज पूरी दुनिया में उनका खुतबे में जिक्र किया जाता है। अभी कल परसों आपने जुमा की नमाज अलविदा की नमाज पढ़ी, खतीब ने खुतबे में अंदर कहा खुसूसन अला अफज़लिल बशर बअद अंबिया बितहक़ीक़ सैयदना व मौलाना अबी बकर सिद्दीक़। सबसे पहले नबियों के बाद सबसे बड़ा रुतबा सिद्दीक़ अकबर को मिला। ये रुतबा सिद्दीक़ अकबर को क्यों मिल गया? घर बनाने की वजह से, जमीन लेने की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, इख्तिदार की वजह से नहीं, नहीं, ये रुतबा मिला है दरबारे मुस्तफा में। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मतलब क्या है? जो दरबारे मुस्तफा में न पहुंच सका वो दरबारे खुदा में भी नहीं पहुंच सकता है। आज कुछ लोग कहते हैं जब हमने सब कुछ पा लिया तो अब नबी की जरूरत क्या है? डायरेक्ट खुदा से मांगो। एक सिलसिला चल रहा है ऐसे लोगों का, डायरेक्ट खुदा से मांगो। मैं कहता हूं जिंदगी भर कहते रहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
इल्ला अल्लाह आप जिंदगी भर कहते रहिए, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह न कहिए तो आप खुदा तक क्या एक दारुल इफ्ता के मुफ्ती तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए कि कोई मुफ्ती भी नहीं कहेगा कि आप मुसलमान हो। आपके मोमिन होने के लिए कोई मुफ्ती भी फतवा नहीं दे सकता है। गोया खुदा तक पहुंचने के लिए दरबारे मुस्तफा तक पहुंचना जरूरी है, और जो दरबारे मुस्तफा तक नहीं पहुंचेगा वो कभी भी खुदा तक नहीं। सुभान अल्लाह। कुछ लोग समझते हैं ये मक्का शरीफ के हैं, ये मदीना शरीफ के हैं, ये फला जगह के हैं। हमारे यहाँ तो इसका तस्वुर बाद में दिया जाता है। अभी कुछ रोज पहले एक जगह ऐसे ही मसला पेश आ गया, तो एक साहब ने कहा हजरत ये फला शरीफ से आए हुए हैं, उनके खिलाफ कैसे आप गुफ्तगू करेंगे, जरा लिहाज करना पड़ेगा। मैंने कहा कि तुमने इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ी है। इस्लाम की अगर तारीख तुमने पढ़ी होती तो ऐसा जुमला नहीं बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो रसूल पाक के ऐसे शहदाइयों में हैं कि अगर कोई मक्का शरीफ से आए, कोई मदीना शरीफ से आए, मगर मोहम्मदी बनकर के ना आए तो वो सब कुछ हो सकता है मगर हमारा नहीं हो सकता है। मक्का शरीफ से कोई आता है, लेकिन अगर अपने आप को वहाबी कहता है तो हम उसको इज्जत देने के लिए नहीं तैयार हैं। किसी खानकाह दरसगाह से कोई आए, अगर मुस्तफा का मुखालिफ है तो वो सब कुछ हो सकता है मगर हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं। जो मुस्तफा का है वो हमारा है, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलियाए मिल्लत कॉन्फ्रेंस, उर्से अलाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पाकीज़ा तालीमात को हम तक पहुंचाया, मैंने अपने तौर पर जो समझा है, थोड़ी देर में मैं आपके सामने उसमें से कुछ बातें अर्ज करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। देखिए अभी आप अंदर दाखिल हुए, गेट के पास दरख्त लगा हुआ है। उस दरख्त के अंदर 3 चीजें हैं। आप उन 3 चीजों पे गौर कर लें और इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात में उन 3 चीजों पर नजर डालें। नजर डालें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ समझने में आसानी होगी। दरख्त है, दरख्त के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक है उसकी जड़, दूसरी है उसकी शाखें, और तीसरी चीज है कि अगर मदरसे का चपरासी होगा, वॉचमैन होगा, बागबान होगा, माली होगा, तो कभी कभी उस दरख्त की कुछ शाखों को काट छांट करके सही करता होगा। आपने पार्कों में देखा होगा, देखते ही रहते हैं। आजकल हम लोग पार्क ही तो देखते हैं और क्या देखते हैं, न हम तारीख देखते हैं, न कुरान देखते हैं, न हदीस देखते हैं, न उलमा के दरबार को देखते हैं। बस हम तो तफरीहों में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा पार्कों में जो छोटे छोटे फूल लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, उसको माली बागबान काटता है, काट छांट करके उसको सही करता है। इस काटने छांटने की बुनियाद पर वो खूबसूरत लगता है। इसको अरबी में तहजीब कहा जाता है। 3 चीज दरख्तों में आपको मिलेंगी, एक उसकी जड़, दूसरी उसकी शाखें, और तीसरी चीज है वक्तन फौक्तन उसको काट छांट करके सही करना। ये 3 बातें दरख्तों में आप देखेंगे। उसके नीचे की जो चीज है उसको आप जड़ कहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको समझाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े। उसकी जड़ जमीन के अंदर छुपी हुई है, शाखें उसकी डालियां दिख रही हैं। अगर शाखों को तोड़ दिया जाए और जड़ मौजूद हो तो फिर उम्मीद है कि दोबारा इसमें फूल पत्ती लग जाएगी, हरियाली आ जाएगी। लेकिन अगर कोई जड़ को काट दे, जड़ को नीचे से सुखा दे, हर रोज उसके अंदर गर्म पानी डालता रहे और आहिस्ता आहिस्ता जड़ खत्म हो जाए, तो जितनी शाखें दिख रही हैं एक दिन वो सब सूख जाएगी, और जितनी पत्तियां दिख रही हैं वो सब टूट करके जमीन पर आ जाएंगी। इससे क्या समझा आपने कि अगर जड़ मौजूद है तो शाखें हरी भरी हैं, और अगर जड़ मौजूद नहीं है तो शाखें सब सूख करके फूल पत्ती देना बंद कर देंगी। ये 2 चीज हुई।
और तीसरी चीज है उसको वक्तन फौक्तन काट छाट करके सही करना, जिसको आराइश ज़ेबाइश और संवारना कहा जाता है, अरबी में जिसको तहजीब कहा जाता है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को जो हुक्म दिया है वो इन्हीं तीनों में मुनहसिर है। एक है बुनियाद, एक है अमल जिसको आप शाख कह दीजिए, एक है तहजीब तमद्दुन। अकीदा जो आदमी के दिल के अंदर होता है, हाथ और पैर में अकीदा नहीं होता, अकीदा दिल और दिमाग में होता है, ये छुपा हुआ होता है। जिस तरीके से दरख्त की जड़ छुपी होती है और उसकी शाखें दिखती हैं, ऐसे ही अकीदा दिल और दिमाग में छुपा हुआ होता है। और शाखों की तरह आप समझ लीजिए अमाल को। अकीदा अलग है जैसे जड़ अलग है, शाखें अलग हैं जैसे अमल अलग है। एक है अकीदा, एक है अमल। अगर आदमी का अकीदा सही नहीं है तो उसके आमाल लाख बज़ाहिर बेहतर हों, लेकिन मैदान महशर में सब सूखी हुई डालियों की तरह होंगे, उसमें कोई फूल पत्ती खुशबू नहीं आएगी, सारे पत्ते झड़ करके जमीन पर आ जाएंगे। कुरान करीम ने इसका नक्शा खींचा है और फरमाया है वअमिलना वक़दिमना इला मा अमिलू फजअलनाहु हबअम मंसूरा। इन कुफ्फार ने जितने काम किए और जो कुछ इन्होंने अच्छे अमाल किए, अपने तौर पर ये सोचते थे कि हमने बहुत अच्छा अमल किया, लेकिन हमने सबको हवा मंसूरा कर दिया, यानी रेत के बारीक बारीक जर्रे जो हवा में उड़ गए और उनका कोई वजूद नहीं रह गया। ऐसे ही जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा वो लाख अच्छे अमाल का जखीरा जमा करने की कोशिश करे, मगर ये सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस्लाम के नजदीक अकीदा असल है, ये जड़ और बुनियाद है। जब तक अकीदा सही रहेगा, अमाल फूल पत्ती की तरह खुशबू देते रहेंगे। और अगर अकीदा गड़बड़ हो गया तो जिस तरह से जड़ अगर खत्म हो जाए तो दरख्त की शाखें सूख करके पत्ते उसके नीचे गिर जाएंगे, इसी तरीके से इंसान का अमल है। इसका मतलब है कि इंसान को पहले अपने अकीदे की दुरुस्तगी के लिए तवज्जो करना जरूरी है। अकीदे के बाद फिर अच्छे अमाल का नंबर आता है। रोजा है, हज है, ज़कात है, नमाज है, अल्लाह के रास्ते में अपने आप को पेश करना है, ये सब अमल है। नमाज अकीदा नहीं है, रोजा अकीदा नहीं है, हज अकीदा नहीं है, बल्कि वो एक अमल है। अकीदा कोई और चीज है, अकीदा अलग है, अमल अलग है। अमाल सालिहा जो आप करते हैं इनको अमाल से आप ताबीर करते हैं, ये शाखें हैं, ये ब्रांच है, ये डालियां हैं। अकीदा अलग, अकीदा दुरुस्त तो आपके आमाल करामत, और अगर अकीदा गड़बड़ तो जितने आमाल हैं वो सब के सब बर्बाद। अकीदा और अमल के बाद तहजीब का नंबर आता है, यानी एक इंसान को मुआशरे में कैसे रहा जाता है, अपनों से कैसे बात की जाती है, गैरों से कैसे गुफ्तगू की जाएगी, आप पहनेंगे कैसा, आप रहेंगे किस तरह से, आपका बाल कैसा होना चाहिए, आपकी दाढ़ी कैसी होनी चाहिए, आपका कुर्ता पाजामा कैसा होना चाहिए, आपका लिबास कैसा होना चाहिए, आपके घर का रहन सहन कैसा होना चाहिए, इसको तहजीब कहा जाता है। आपकी बोली कैसी होनी चाहिए। आदमी जो ही बोलता है फौरन समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि ये बेपढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा है। आदमी ने जो ही गुफ्तगू शुरू की सामने वाला समझ जाएगा कि ये मुहज्जब है कि गैर मुहज्जब है। मैं अपने यूपी के अंदाज में दो तरीके से बोलता हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि इन दोनों तरीकों में कितना फर्क है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे बस से सफर करना हो और मैं बस में बैठा और मैंने कंडक्टर से कहा, ए कंडक्टर तनी टिकट तो बना दो, ये हमारी यूपी की बोली हो गई। सुनने वाले सुन लेंगे और समझ जाएंगे कि मौलवी साहब पढ़े लिखे कब है। अगर ये पढ़े लिखे होते तो दूसरे ढंग से बोलते। इतने में एक शख्स आया, उसने कहा, कंडक्टर साहब जरा टिकट बनाइए। सुनने वाला समझ जाएगा कि ये पढ़ा लिखा लगता है। मैंने अभी दो जुमले इस्तेमाल किए, दो तरीके से इस्तेमाल किए। एक तरीके ने बता दिया कि कम पढ़े लिखे हैं और दूसरे तरीके ने बता दिया कि ये पढ़े लिखे हैं।
اس کا مطلب کیا ہوا؟ آدمی کی بولی سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی تہذیب کیسی ہے، آدمی کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی تہذیب کیسی ہے، آدمی کی رفتار و گفتار سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی تہذیب کیسی ہے، ملنے سے پتہ چلتا ہے، معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی تہذیب کیسی ہے۔ اسلام نے بہترین عقیدہ دیا، ایسا عقیدہ دیا کہ پوری کائنات میں اس سے بہتر کوئی عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام نے وہ عقیدہ دیا کہ جس عقیدے کی بنیاد پر ہم نے انسانیت کے جوہر کو پہچان لیا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ عقیدہ اسلام نے دیا کہ ایک خدا کو مانو۔ آج تو بہت سے ویل اپ ٹو ڈیٹ پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر کہنے والے آتے ہیں ویڈیو پر، آتے ہیں وہ فیس بک پر، آتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعہ، اور ان کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ایکس مسلم ہے، یعنی یہ پہلے مسلمان تھے اب مسلمان نہیں رہ گئے۔ نام مسلمانوں جیسا اور نوجوانوں کے اوپر اثر ڈالنے کے لیے ان کو ایکس مسلم کہلا کر کے ان کا تعارف کرایا جاتا ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان تھے مگر اب انہوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسلام سچا مذہب ہوتا تو یہ ڈاکٹر صاحب کیوں اسلام کو چھوڑتے، یہ انجینئر صاحب کیوں اسلام کو چھوڑتے؟ اس طرح سے نہ جانے کتنے نوجوان صبح سے شام تک یا تو بدعقیدہ ہو جا رہے ہیں یا کچھ نہیں تو شک و تردد کا شکار ہو جا رہے ہیں۔ اس وقت الہاد کی ایک تاریخ تحریک چل رہی ہے جہاں خدا کے وجود کے انکار کا درس سکھا دیا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے خدا کوئی چیز نہیں ہے، انسان خود بخود وجود میں آ گیا۔ بلکہ اب تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت آدم انسانی تحقیق کے مطابق پہلے انسان نہیں ہے، قرآن نے غلط کہا ہے، پیغمبر اسلام نے غلط بتایا ہے۔ آپ کہتے ہیں مدرسوں کی ضرورت کیا ہے، آپ کہتے ہیں علماء کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے بتائیے جب اسلام پر اس طریقے کے اعتراض ہونے لگے اور ہو رہے ہیں تو ان کا جواب کون دیتا ہے؟ کون ان کا جواب دے گا؟ اس کے جواب کے لیے کون میدان میں آتا ہے؟ آج دنیا میں ہزاروں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کون ٹیم بیٹھتی ہے؟ کون لوگ ہیں جو جائز و ناجائز کا فرق بتا کر کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں؟ اس وقت اس طرح سے اضطراب اور بے چینی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے کہ کوئی مسلمان کہلانے کے باوجود خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، کوئی رسول پاک پر تبرہ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نہ سنی نہ وہابی، ہم تو مسلم ہیں کتابی۔ وہ کتابی مسلمان اپنے آپ کو بتانے کے لیے بے چین نظر آتا ہے۔ کوئی حضرت عائشہ صدیقہ پر تبرہ کر رہا ہے، کوئی عمر فاروق اعظم پر تبرہ کر رہا ہے۔ یہ ساری تحریکیں اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہیں تاکہ امت مسلمہ کے عقیدے کو برباد کر دیا جائے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے آج سے تقریباً 150 سال پہلے فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدنی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ اگر آپ نے ان مدرسوں کو باقی نہیں رکھا، اگر آپ نے ان علماء سے اپنا رابطہ نہیں رکھا تو میں جو حالات دیکھ رہا ہوں آنے والی نسلوں کے اندر نہ ایمان رہ جائے گا نہ اسلام رہ جائے گا۔ جس تیزی سے الحاد اور بے دینی کو پھیلایا جا رہا ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اسلام کے بنیادی عقائد نہیں سکھائے، ان کے عقیدوں کو آپ نے مضبوط نہیں کیا، ان کو صحیح اعمال کی تعلیم نہیں دی، تو آپ دیکھیے گا آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ملے گا۔ کس خیال میں ہے آپ؟ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ کس طرح سے آپ کو بربادیوں کے دہانے پر لے جا رہی ہے کہ اگر آپ نے ان علماء اور ان مدارس کی طرف توجہ نہیں کی اور آپ نے اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے بندوبست نہیں کیا تو آنے والے وقتوں میں خود آپ کا بھی ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی رمضان شریف سے پہلے اتفاق سے میں نے سفر شروع کیا، مولانا وقار اعظم صاحب ملنے کے لیے میں اسی مظفر پور کے قصبے میں آیا ہوا تھا۔ 24 فروری سے لے کر
मैंने तकरीबन 17 मार्च तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों का सफर किया। आपके बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इतने सूबों का सफर किया। और जहां मैं गया मैंने लोगों से वहां की जरूरतों के बारे में गुफ्तगू की। उनसे पूछा आपके यहाँ के मजहबी हालात कैसे हैं, आपका मुआशरा कैसा है, आपके यहाँ नौजवानों की हालत क्या है। तो एक बीमारी का तस्करा सबने किया, सबने एक बीमारी के बारे में बताया। हजरत नौजवानों में नशा का बहुत ज्यादा चलन हो रहा है, लोगों के अंदर बुराइयां बड़ी तेजी से फैल रही हैं और बहुत ज्यादा हमारा नौजवान इस्लामी अकीदे से दूर होता जा रहा है। इनके अंदर इस्लामी तहजीब, इस्लामी सकाफत, इस्लामी कल्चर नहीं होने आपने पा रहा है। ये इस्लामी अकीदे से दूर, इस्लामी अमाल से दूर, इस्लामी तहजीब और तमद्दुन से दूर, ये सब तरफ के हालात ये ऐसे ही नहीं बने हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने ये हालात बनाए हैं। इसी सफर में मुझे एक साहब मिले जिनका ताल्लुक एक बहुत मशहूर पार्टी से है। उन्होंने मुझसे कहा हजरत अगर आप हजरात ने तवज्जो नहीं दी और लोगों को आपने इस्लाम से मजबूती से नहीं जोड़ा, मदारिस से इनका ताल्लुक अगर मजबूत नहीं रहा तो आने वाली नस्लों का ईमान सलामत नहीं रह सकता है। मुझे इस मौके पर एक बुजुर्ग का वाकया याद आता है। शुएबुल औलिया हजरत सूफी यार अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम आपने सुना होगा। ये बराव शरीफ इदारे के पानी दारुल उलूम फैजुर रसूल इनका इदारा है। उनका बहुत मशहूर वाकया हजरत सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक किताब में तहरीर फरमाया है। वो फरमाते हैं कि हुजूर शुएबुल औलिया के ज़ुहद और तक़वा का बड़ा तज़किरा मैंने सुना था। यह आज से तकरीबन 60-70 साल पहले की बात है। उस वक्त अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह भिवंडी महाराष्ट्र में एक इदारे के अंदर तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो लिखते हैं मैंने सुना कि शुएबुल औलिया कुर्ला बॉम्बे में आए हुए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनका दीदार करूं। अपने चंद साथियों के साथ मैं बॉम्बे कुर्ला पहुंचा और जब मैंने साहिब खाना के घर हाजिरी दी तो साहिब खाना ने बताया कि हजरत की तबीयत अलील है, आराम फरमा रहे हैं, नींद में है, अभी जब वो बेदार होंगे तब मैं आपकी मुलाकात करा सकता हूँ। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी इंतजार करते रहे और फिर जब शुएबुल औलिया बेदार हुए साहिब खाना ने हजरत से मुलाकात कराने के लिए आज़मी साहब ने कहा तशरीफ ले चलिए। हजरत अंदर गए, खुद दिखते हैं सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह कि जब मैं घर में गया तो मैंने देखा हजरत शुएबुल औलिया बिस्तर पर लेटे हुए थे, मगर क्योंकि उन्होंने मुझे देखा तो वो खड़े होने लगे। मैंने कहा हजरत आपकी तबीयत अलील है, आप लेटे रहिए, हम यूं ही आपसे मुसाफा कर लेंगे। मगर शुएबुल औलिया ने फरमाया नहीं मौलाना, मैं आपसे खड़े होकर के मुसाफा करूंगा। कहा हुजूर आप अलील हैं, लेटे रहिए, बैठ करके मुसाफा कर लीजिए। कहा नहीं मैं खड़े होकर के मुसाफा करूंगा। चुनांचे शुएबुल औलिया अलैहि रहमतुल रिज़वान खड़े हुए, मुसाफा किया, फिर बैठे और उसके बाद शुएबुल औलिया ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया मौलाना मैंने आपको देख करके क्यों खड़े होकर आपसे मुसाफा किया और आपने कहा भी कि बैठे बैठे मुसाफा कर लीजिए, मगर मैं क्यों आपके लिए खड़ा हो गया उसकी वजह मुझसे सुन लीजिए। कहा अल्लामा आज़मी ने हजरत बताइए आखिर क्यों आपने इतने इसरार से इस तरह का अमल वजूद में ला करके हमारी इज्जत अफजाई की। शुएबुल औलिया ने फरमाया कि मौलाना हमसे ज्यादा आप इल्म रखते हैं, हमसे ज्यादा आप तारीख पढ़ने वाले हैं, आपने ये पढ़ा है, आपको ये मालूम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए उनके मानने वालों ने चंद ही बरसों के बाद उनकी तालीम को बदल डाला, उनकी तालीम बदल गई, तौरेत के अंदर तब्दीली उन्होंने पैदा कर दी। उनके मानने वालों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम को बदल डाला। हजरत ने फरमाया जी हजरत आप सही फरमा रहे हैं। फिर शुएबुल औलिया ने फरमाया और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए
تو उनके मानने वाले भी उनके जाने के बाद आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ ले जाने के बाद उनके मानने वालों ने भी उनकी तालीम को बदल डाला। कहा हाँ हजरत ये भी सही है। कहा हजरत मूसा गए, उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला। हजरत ईसा आसमान पर गए, उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला। शुएबुल औलिया आगे फरमाते हैं मगर 1400 साल हो गए मेरे मुस्तफा की जो तालीम 1400 साल पहले सहाबा ने महफूज रखी थी, आज 1400 साल के बाद भी ये तालीम वैसे ही महफूज है। रसूल पाक ने जो अहकाम बताए थे वो अहकाम आज भी वैसे ही महफूज है। तो किसकी मेहनतों से महफूज है? किसकी मेहनतों से ये सारे अहकाम महफूज है? रसूल पाक के फरमान में आज तक 1000 कोशिश के बावजूद कोई तब्दीली क्यों नहीं कर सका? इसलिए कि रसूल पाक ने अपने नायब की हैसियत से उलमा की जमात को छोड़ दिया। अगर ये उलमा सच्चे उलमा ना होते तो इस्लाम की तालीम भी नहीं रह जाती। रसूल पाक ने अपने नायबीन की एक टीम छोड़ी जिनके जरिया इस्लाम आज अपनी सच्ची सूरत के साथ मौजूद है। तो इसमें मेहनत आप जैसे उलमा की है, आप जैसे उलमा की मेहनत का नतीजा है। तो आपकी ताज़ीम ये दर हकीकत रसूल पाक की ताज़ीम है। इसलिए मैंने खड़े होकर के आपका एहतराम। हज़रात इस वक्त जो सूरत हाल है, कभी कभी मैं बोल देता हूं दबे लफ्जों में कि जो लोग न जाने क्या क्या खाते पीते हैं, खिंजीर खाएं, कुत्ता खाएं, चूहा खाएं, गोबर खाएं, शराब पिए, पेशाब पिए, जो जो नहीं करना चाहिए अक्ल इंसानी के मुताबिक वो सब करते हैं। उन्होंने तो ये जान लिया कि हमारे मजहबी पेशवा का मकाम क्या है, मगर हमारी कौम आज तक नहीं जान सकी कि हमारे मजहबी पेशवा का मकाम क्या है। ये नहीं समझ सके इनका रुतबा क्या है। ये महफूज है तो आपका दीन महफूज है, आपका अकीदा महफूज है, आपका अमल महफूज है। ये नहीं रहेंगे तो ना आपका अकीदा सही रह सकता है, ना आपका अमल सही रह सकता है। 3 चीजें इस्लाम ने आपको खुसूसियत के साथ दी थी और आज तीनों पर हमला करने की कोशिश ही नहीं बल्कि हमला करके न जाने कितनों को बर्बाद कर डाला गया है। एक है अकीदा, दूसरा है अमल और तीसरी चीज है तहजीब। अकीदा ये बुनियाद है, अमल ये शाखें हैं और कैसे आपको रहना है, कैसे उठना बैठना है, ये आपकी तहजीब है। और इन तीनों पर हमला इस वक्त इस्लाम दुश्मन ताकतें कर रही हैं। आपको हालात का मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते आप अपने अकीदे और अपने अमाल की हिफाजत कीजिए, तहजीब और कल्चर की हिफाजत कीजिए। अगर आपका अकीदा सही नहीं रहा तो आपके अमल का कोई फायदा नहीं। अकीदा में, अकीदा बुनियाद है और इस अकीदे में बुनियादी हैसियत अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत को हासिल है। अकीदे तौहीद क्या है? खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसने इस कायनात को बनाया है, वही इस कायनात को चलाता है। ये अकीदे तौहीद है। और अकीदे रिसालत क्या है कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1 लाख कमो बेश 2,24,000 नबियों को भेजा और पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हमारे आपके आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये अकीदे रिसालत है, वो अकीदे तौहीद, ये अकीदे रिसालत है। इन दोनों अकीदों को बुनियादी हैसियत हासिल है और इस्लाम दुश्मन ताकतें चाहती हैं कि इन दोनों अकीदों को बर्बाद कर दिया जाए। चुनांचे इस वक्त आज आप देख रहे हैं कि न जाने कैसे कैसे अंदाज से अकीदे तौहीद को बर्बाद किया जा रहा है। आपको ये पढ़ाया जाता है,
आपको ये बताया जाता है कि अगर आप उनकी तरह भी कुछ काम कर लेंगे तो आपस में मेल मोहब्बत बढ़ेगी, यकजहती का मुजाहरा होगा, इत्तेहाद बाकी रहेगा। मुझसे एक डॉक्टर साहब ने बताया कि हजरत मैंने अपने घर के एक फर्द का एक कॉलेज में दाखिला करा दिया, एडमिशन हो गया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। कहा वो डॉक्टरी पढ़ने के लिए तैयार, तो मैंने उसी लाइन में उसको डाल दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक महीने के बाद उनका मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत उसने फोन करके मुझे आजिज कर दिया कि अब्बू मुझको यहाँ से निकालिए, मैं यहाँ नहीं पढ़ने को, मैं यहाँ किसी हालत में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझसे बताया कि मैं मजबूर होकर गया और मैं वहां से लेकर के आ गया। मैंने पूछा बेटे बात क्या थी, क्यों तुमने इस तरह से इनकार किया? तो उसने जवाब दिया अब्बू बात यह है कि आपने मुझको दीन की तालीम दी है, आपने मुझको मजहबी माहौल में रखा है, लेकिन जब मैं वहां पढ़ने के लिए गया तो मैंने ये देखा कि क्लास रूम में जब जाया जाता है तो वो यहाँ वहां पर कदे आदम के बराबर एक मुजस्समा रखा हुआ है और जो क्लास में जाएगा उसे उस मुजस्समे को हाथ जोड़ करके सलामी पेश करके ही अंदर जाना है। क्योंकि मैंने मजहबी माहौल में आंखें खोली है, आपने मुझे दीन पढ़ाया है, आपने मुझे अकीदे तौहीद बताया है कि खुदा के अलावा किसी मुजस्समे के सामने हाथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए मैंने जब ये मंजर देखा कि जिस बच्चे को क्लास में एंट्री लेनी है तो उसे मुजस्समे के सामने नतमस्तक होना है, इसलिए मैंने तहिया कर दिया कि मेरा जाहिल रहना अच्छा है मगर बेईमान बनना मुझे गवारा नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ से ले चलिए। ये मैं एक कॉलेज की बात बता रहा हूँ, न जाने कितनी जगह पर ऐसा होता है। अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए कितनी स्कीमें इस वक्त चल रही है, मुझसे ज्यादा शायद आप इससे आगाह हो। इसलिए आप अपने बच्चों के दिलो दिमाग में ये बात बिठा दीजिए कि मौत खुदा देता है, जिंदगी खुदा देता है, और जो लम्हा मौत और जिंदगी का मुतय्यन है पूरी दुनिया मिल करके उसके खिलाफ अगर करना चाहे तो नहीं कर सकती है। पूरी दुनिया आपके कत्ल पर जमा हो जाए और खुदा न चाहे तो आप कत्ल नहीं किए जा सकते हैं। ये अकीदा अपने बच्चों के दिल में बिठाइए। जब ऐसा अकीदा उनका रहेगा तो वो कहेंगे हर दफा हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह इतना कह दे कि तू माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से आलाई चकना शरीफ हुजूर मुनासिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सही बात यह अली है कि अभी हमने ईमान को सही ढंग से समझा है। उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ खुदा की तरफ से लेकर आए उस पर यकीन करने का नाम ईमान है। यकीन क्या चीज है जानते हैं? यकीन किसको कहते हैं मालूम है? ये यकीन कौन सी बला है? एक मिसाल से मैं समझाऊं, अगरचे ये रात मुतहम्मिल नहीं है, ये वक्त मुतहम्मिल नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मिसाल के तौर पर अभी चंद तलबा की फरागत हुई, दस्तारबंदी उनकी हुई, हाफिज कुरान हुए, उनकी तहनीत के लिए, उनकी मुबारकबादी के लिए शार पढ़े गए। मिसाल के तौर पर उसमें से एक हाफिज कुरान को मैंने खड़ा किया और उससे मैंने कहा जरा दूसरा पारा शुरू से सुनाओ, दूसरे पारे की इब्तिदा जहां से होती है पढ़ो। उस हाफिज कुरान ने पढ़ना शुरू किया और कहा सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास। एक आयत पढ़ी, मैंने उसको डांटा और मैंने कहा कि यही तुमने याद किया है, यही याद किया है तुमने, तुम्हारे उस्ताद ने यही पढ़ाया है। मैं दूसरे पारे की इब्तिदा से पढ़ने के लिए कह रहा हूं। अब वो सोच में पड़ गया, सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद लड़खड़ाई जबान से कहता है सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास। मैंने फिर डांटा, अब वो सोच में पड़ गया, बोल ही नहीं पा रहा।
ایک طالب علم یہ ہے، اور اتفاق سے ایک دوسرے حافظ قرآن کو بھی بلایا جس کی دستار ہوئی۔ میں نے اس سے کہا ذرا دوسرے پارے کو شروع سے سناؤ، دوسرے پارے کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اسے پڑھو۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علیہا۔ میں نے کہا یہی یاد کیا ہے؟ تمہارے استاد نے یہی تم کو پڑھایا ہے؟ آج اسی چیز کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا حضور